गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all to today's online session for Statistics Standard 11, Chapter number 4, Measure of Dispersion. Measure of dispersion is also called as deviations. It's also called as deviation. मतलब difference यहाँ पे क्या है आपको ये फाइंड करना है. In this chapter, we will be basically learning about the deviations. 4 types of deviations are there. Number 1 is range deviation. Number 2 is quartile deviation. Number 3 is average deviation, means you can say mean deviation. And number 4 is standard deviation. Okay, these 4 topics we are going to cover up in this particular chapter of measure of dispersion, that is deviations. Okay, straightforward coming to the first topic, that is range deviation. Range deviation, range. Okay, the formula is XH minus XL, highest number minus lowest number. If we got to find relative range, अगर बोला जाता है सम में आपको फाइंड करना है relative range और coefficient of range, तो फॉर्मूला है XH minus XL upon XH plus XL. XH minus XL तो अपना आ रहा है range upon XH plus XL. Some examples, supposedly आपको XI लिख रखा है. सपोजिटली आपको एक्सआई लिखा रखा हुआ है 8, 9, 10, 14, 18, 20, 28. आपको एक्सआई लिखा रखा है. सो व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर 28. व्हाट इज द लोएस्ट नंबर 8. आपको बोला गया फाइंड करो रेंज, तो XH माइनस XL 28 माइनस 8 दैट इज 20. आपको बोला गया फाइंड करो रिलेटिव रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. अगर आपको बोला गया फाइंड करने के लिए तो XH minus XL upon XH plus XL 28 minus 8 upon 28 plus 8 that is 20 upon 36. Calculation is allowed. 20 divided by 36 that is 0.555. I can say it is 0.56. Okay, if it is only XI. If it is XI of 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In this case also, मुझे frequency कोई काम की नहीं है, मुझे XI से लेना देना है. Frequency कहीं पे कोई काम की नहीं है. What is the lowest number 10? What is the highest number 20? अगर आपको range find करना है, XH minus XL 20 minus 10 that is 10. Okay. अगर आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट पूछा गया है, दैट इज XH minus XL upon XH plus XL is equal to 20 minus 10
upon 20 plus 10, that is 10 upon 30. The answer is therefore 0.33. ओके, XIFI दिया है तो अगर आपको देखे लगा है क्लासेस वाला क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी देखे लगा, सपोज क्लास दिया है 10 to 15, 15 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 80 क्लासेस दिया है। फ्रीक्वेंसी देखे रखा है 2, 3, 4, 5, 6। अगेन आपको रेंज फाइंड करने को बोला है, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं, कुछ भी नहीं। दैट इज हाईएस्ट नंबर इज 80, लोवेस्ट नंबर इज 10, दैट इज 70। अगर आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, द फॉर्मूला XH minus XL upon XH plus XL, 80 minus 10 upon 80 plus 10, that is 70 upon 90. So 70 divided by 90 is 0.777, means 0.78 I can say. Okay. Quartile deviation, that is denoted by QD. Formula is Q3 minus Q1 upon 2. Okay. And coefficient of quartile deviation find करना है. So Q3 minus Q1 upon 2 upon Q3 plus Q1 upon 2. ये 2 cancel. तो फॉर्मूला बन जाती है Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Okay. If it is only xi, पहला सम only xi. दिया suppose 10, 14, 20, 18, 23, 26, 29 ये दिया। पहले असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। So 10, 14, 18, 20, 23, 26 and 29। पहले Q1 फाइंड करते हैं, n plus 1 upon 4th observation। तो 7 plus 1 upon 4th observation, that is 8 upon 4 मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो Q1 का आंसर आ गया मेरा 14। ओके, देन Q3 फाइंड करते हैं। 3n plus 1 upon 4th observation, 3n plus 1 upon 4 मतलब क्या था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। 3 into second observation, that is 6th observation। 6th observation मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26। Q3 आ गया आपका 26। ये हमने पहले भी चैप्टर में किया हुआ है। ओके, सो अब QD की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Q3 minus Q1 upon 2, so 26 minus 14 upon 2, so 12 upon 2, that is 6। QD का आंसर आया 6। अगर अप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट of quartile deviation, that is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। ध्यान देना, सीधा उठाएंगे, यहाँ समझ देना, वैल्यूज लिखना। 26 minus 14 upon 26 plus 14, 12 upon 40। ओके, 3 upon 10, 0.33, 4 3 जा 4 10 जा, तो 0.33 ये आ गया मेरा पे कोएफिशिएंट का आंसर। ओके, अगर ओनली दिया है XIFI, अगर आपको देखे रखा हुआ है XIFI, ओके, सपोज 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 10, तो आपको करना पड़ेगा CFI, करना पड़ता है CFI। सो 2 plus 3, 5, 10, 16, 26 मतलब ये आ गया 26। Q1 equal to n plus 1 upon 4th observation, equal to 26 plus 1 upon 4th observation, that is 27 upon 4। 27 divided by 4, that is 6.75th observation, 6.75th observation। अब 6.75 किसके अंदर, 10 के अंदर, तो 14 is my answer। Q1 equal to 14। okay, Q3 equal to 3n plus 1 upon 4th observation, 3 into 6.75th observation, okay, multiplied by 3, 20.25th observation,
20.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आएगा 26 के अंदर सो Q3 इज इक्वल टू 18 वन साइड द आंसर फॉर Q1 एंड Q3 QD में पुट अप कर देते हैं QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 18 माइनस 14 अपॉन 2 4 अपॉन 2 मतलब 2 आ गया QD का आंसर 2 ओके कोएफिशिएंट फाइंड करना है कोएफिशिएंट फाइंड करना है सो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 18 माइनस 14 अपॉन 18 प्लस 14 4 अपॉन 32 ओके लेट मी सॉल्व 4 डिवाइडेड बाय 32 0.125 इसका आंसर आ गया 0.125 ओनली एक्स एफ लिया है तो इन दैट केस आपको इस तरीके से सॉल्व पे करना इन केस अगर आपको क्लास का दिया हो इन केस अगर आपको क्लास दिया हो 10 से लेके 20 20 से लेके 40 40 से लेके 70 70 टू 100 ओके फ्रीक्वेंसी लेके रखा हो 12 28 36 ओके एंड 26 तो पहले करूंगा CF 12 40 76 इसको 4 कर लेते हैं ये 100 हो गया 100 पहले Q1 फाइंड करते हैं Q1 इक्वल टू L प्लस N अपॉन 4 माइनस CFI अपॉन F इंटू C ओके सो N अपॉन 4 करना पड़ेगा पहले N अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन सो 100 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन दैट इज 25th ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा 40 के अंदर तो क्लास कौन सा हो गया 20 टू 40 तो लोअर लिमिट 20 N upon 4 25 CFI 12 उसकी फ्रीक्वेंसी 28 क्लास लेंथ इसकी 20 plus 13 upon 28 into 20 so 13 into 20 is 260 divided by 28 9.28529 that is 20 plus 9.29 Q1 का आंसर आ गया 29.29 Q3 करे तो L plus 3 N upon 4 minus CFI upon F into C तो पहले 3 N upon 4 फाइंड कर लेते हैं 3 N upon 4 25 था 3 into 25th observation that is 75th observation 76 का अंदर आ गया तो 40 to 70 तो लोअर लिमिट 40 ये 75 CFI 40 इसकी फ्रीक्वेंसी 36 इसकी क्लास लेंथ 30 इज इक्वल टू 40 प्लस 75 माइनस 40 is 35 so 35 multiplied by 30 divided by 36 29.17 that is 69.17 आपका आ गया Q3 वंस आपको वैल्यूज मिल गए आंसर्स मिल गए Q1 और Q3 की वंस आपको आंसर्स मिल गया Q1 और Q3 ओके आपको सिर्फ पुट अप करना है फॉर्मूला के अंदर ओके Q3 आ गया 69.17 माइनस 29.29 होल अपॉन 2 69.17 माइनस 29.29 और 69.17 प्लस 29.29 ओके सॉल्व कर लेते हैं 69.17 minus 29.29 equal to 39.88 divided by 2 19.94 ये आ गया QD का आंसर 69.17 plus 29.29 98.46 39.88 divided by 98.46 gives the answer 0.41 405 मतलब 0.41 तो आपने ऑलरेडी क्वार्टर्स को फाइंड करना पहले सीखा हुआ ही था आई डोंट थिंक सो आपको भी हेलो एवरीवन
welcoming you all in today's online session for Statistics Standard 11th, Chapter number 4, Measure of Dispersion. Till now we have learned about range deviation, quotient deviation, mean deviation and standard deviation. Now carrying forward to the next topic, that is coefficient of variation. Okay, there is a small change in the formula. Coefficient of variation. So formula ऐसी है, s upon x bar multiplied by 100. कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिवीजन का s upon x bar, ये है मेरा s upon x bar multiplied by 100. ओके, अब हमें पूछा है वेरिएशंस, तो मुझे मिनिमम दो वेरिएबल्स के बारे में दिया होगा, या सपोज टीम ए एंड टीम बी, सपोज टीम ए एंड टीम बी के बारे में दिया होगा. अगर ओनली एक्स साइन दिया है तो उससे भी आपको एक्स बार फाइंड करना आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता है. ओके, एक्स आई एफ आई दिया है तभी भी आपको आता है. तो इन दिस सॉर्ट आपको एस फाइंड करना, एक्स बार फाइंड करना ऑलरेडी आता है. नीचे वेरिएशंस पूछा है, जो दोनों के जो फाइनल आंसर है वो परसेंटेज में आएंगे बिकॉज वो 100 है मल्टीप्लाई. ओके, अगर पूछा है कहां पे वेरिएशन ज्यादा है, जिसका अमाउंट बड़ा होता है वहां पे वेरिएशन ज्यादा है. कहां पे वेरिएशन ज्यादा है? दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी. सपोज टीम ए का सीबी का आंसर आया 23.5%, टीम बी का सीबी कोएफिशिएंट वेरिएशन का आंसर आया 29.26%. कहां वेरिएशन ज्यादा है? भाई टीम बी में वेरिएशन ज्यादा है. कहां स्टेबिलिटी है, कहां कंसिस्टेंसी है? भाई टीम ए में कंसिस्टेंसी है. ये कंसिस्टेंसी है या स्टेबिलिटी है, यहां वेरिएशन ज्यादा है. तो हमें क्वेश्चन में देख के हमें डिसाइड करना है हमें क्या पूछा है, कैसे क्या करना है. ओके, बस सीवी में इतना है, आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता है. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. इसी का एक पार्ट है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. इसके लिए पहले मुझे कंबाइंड मीन फाइंड करना पड़ेगा. पहले फाइंड करना पड़ेगा मुझे कंबाइंड मीन, जिसकी फॉर्मूला n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 जितने भी हो अपॉन n1 प्लस n2 प्लस जितने भी हो. इसका आंसर आएगा फिर d1 फाइंड करना है, x bar 1 माइनस x bar c, x bar 1 माइनस x bar c. फिर d2 फाइंड करना है, x bar 2 माइनस x bar c. d1 d2 फाइंड कर लेने के बाद आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन करना है. अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर. s मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, या तो वेरिएंस लेके रखा होगा या स्टैंडर्ड डिवीजन दिया को स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2. ये फॉर्मूला. एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लिख देता हूं मैं. यहाँ पे सपोजली इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया है n1 as 60, n2 as 40, x bar 1 as 5, x bar 2 as 6. ओके, s1 as 3, s2 as 4 स्टैंडर्ड डिवीजन देकर रखा है. पहला कंबाइंड मीन फाइंड करना है. x bar c इक्वल टू n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 होल अपॉन n1 प्लस n2. Your n1 is 60, x bar 1 is 5. Your n2 is 40, x bar 2 is 6. Whole upon 60 plus 40. That is 300 plus 240. Whole upon 100. That is 5.4. x bar c आ गया आपका 5.4. फिर d1 फाइंड करना है. x bar 1 minus x bar c. That is 5 minus 5.4 equal to minus 0.4. या d1. हमें तो फॉर्मूला में d1 का स्क्वायर चाहिए, तो यहीं पे d1 का स्क्वायर लिख देते हैं. ऐसा है तो d1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.16. ओके, देन d2 फाइंड करना है. x bar 2 minus x bar 6 c, तो 6 minus 5.4 that is 0.6. तो
तो D2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36, तो स्क्वायर भी लिख दिए साथ में जो मुझे काम का था। ओके, सो अब पुट अप करता हूं अपने कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूला में। SC इक्वल टू अंडर रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2। ओके, वैल्यूज पुट अप करता हूं। योर n1 जो है वो 60 है, s1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस d2 का d1 का स्क्वायर 0.16 प्लस 40 s2 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस d2 का स्क्वायर दैट इज 0.36 होल अपॉन 60 प्लस 40 होल अपॉन 60 प्लस 40 इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट 69.16 प्लस 40 16.36 whole upon 100. Let's multiply 60 with 9.16. 60 into 9.16. 9.16. 549.6 equal to under root 549.6 plus 40 into 16.36 654.4 डिवाइडेड बाय 100, दोनों नंबर को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 100। ओके, तो आया डिवाइडेड बाय 100, गॉट द आंसर एज 12.04। मुझे आंसर मिला 12.04, उसका निकाल लेता हूं रूट 3.469 मतलब 3.47। ओके, 3.47 या आ गया SC। अगर बाय चांस पूछते हैं कि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस करना है इस केस में भी, ओके, तो पॉसिबल है वो भी हमारे लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ variation is equal to SC upon x bar C multiplied by 100. Your SC is 3.47. Your x bar C is 5.4 multiplied by 100. 5.4. 64.26. So the answer is 64.26%. Okay. So I hope I'm very much clear कैसे क्या फाइंड यहाँ पे करना है। ओनली CV की फॉर्मूला है S अपॉन x बार इंटू 100, S मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन। अब क्वालिटी फाइंड करना यहाँ पे आता है। ओके, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए पहले मुझे कंबाइंड मीन करना पड़ेगा, देन D1 D2 फाइंड करना पड़ेगा, देन फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। ओके, क्वेश्चन में देख लेना, S दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है, वेरियस मतलब S का स्क्वायर होगा, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तो देख के फिर आगे बढ़ना। ओके, अप्लाई करनी है आपको फॉर्मूला। ओके, आई एम अटैचिंग विद दिस वीडियोस ऑफ illustrations and exercise. You got to solve that. Chapter number 4, measure of dispersions. Final exercise, section C. We will solve the sums. Question number 6, find the coefficient of total deviation from the observations. तो आपको QD फाइंड करना है एंड कोएफिशिएंट भी साथ में फाइंड करना है। तो फार्मूला विल बी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 फॉर QD एंड कोएफिशिएंट की फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। पहले Q1 फाइंड करना है n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशंस, देन Q3 फाइंड करना है 3n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशंस की जो भी वैल्यू है आपको पुटअप करना है फॉर्मूला के अंदर। नंबर 7, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कॉलम बना देना XI का 38176। ओके, पहले x बार फाइंड कर लो, 3 प्लस 8 11, 12 प्लस 7 19 प्लस 6 25, 25 अपॉन 5 इज 5, x बार विल बी 5। नेक्स्ट कॉलम बना दो मॉड्यूलस, सीधा हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट डिविएशन, मॉड्यूलस XI माइनस x बार, हर नंबर में से 5 को माइनस करें, 3 माइनस 5 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3,
1 माइनस 5 इज़ 4, 7 माइनस 5 इज़ 2 एंड 6 माइनस 5 इज़ 1। उसको प्लस कर लो, यूल गेट सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन करोगे, आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा। ओके, हमें मीन डेविएशन ही फाइंड करना है वैसे। नंबर 8, इफ़ एक्स बार इक्वल टू 25 एंड सी वी इज़ 20%, फाइंड द वेरिएंस। तो सी वी की फॉर्मूला है एस अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। सी वी आपको दिया है 20, एस हमें पता नहीं है, एक्स बार दिया है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर ले तो इट विल बी 500, डिवाइड बाय 100 कर लो तो इट विल बी 5। तो 5 आ गया आपका एस। तो एस मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका स्क्वायर करना है वेरिएंस के लिए, तो 5 का स्क्वायर इज 25 विल बी द वेरिएंस। नेक्स्ट, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉर द ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5। पहले एक्स बार फाइंड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज 15, एक्स बार इक्वल टू 15/5 दैट इज 3। फिर इसके बाद में हम एक्स आई का स्क्वायर कर लेंगे सीधा, छोटे ही नंबर है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 25 + 16 दैट इज 41, 41 + 9 दैट इज 50, 50 + 4, 54 + 1 55। ओके, तो एस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो 55/5 दैट इज 11 माइनस 3 का स्क्वायर, ओके दैट इज 9, 11 माइनस 9 दैट इज 2 अंडर रूट 2, तो उसका आंसर आता है 1.41। आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द डेली प्रोडक्शन। स्टेबिलिटी पूछिए, मतलब सी वी फाइंड करना है। सी वी की फॉर्मूला एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। एस फैक्ट्री ए का एस दिया है 10, एक्स बार दिया है 50, 10/50 इंटू 100 दैट इज 20%। दूसरे वाले का एस है 12, फैक्ट्री बी का एस है 12, एक्स बार है 48, तो एस अपॉन एक्स बार इंटू 100, 12/48 इंटू 100, जो भी इसका आंसर आता है। आपको पूछा स्टेबिलिटी, तो जिसका आंसर छोटा है वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। Number 11, the 25th and 75th percentile of a data set are 20 and 30 respectively. Find the coefficient of quarter deviation. अब देखो थोड़ा कंफ्यूज के लिए पूछा है 25th percentile। 25th percentile मतलब Q1 होता है, Q1 is 20 एंड 75th percentile that is Q3 होता है, तो Q3 is 36। आपको coefficient of Q फाइंड करना है, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, 36 minus 20 upon 36 plus 20। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन 100 प्लांट्स ऑफ ए नर्सरी इज गिवन बिलो, फाइंड द क्वार्टल डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम इट। क्यू डी फाइंड करना है, एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, पहले आप सी एफ आई का कॉलम बना लो। Q1 इक्वल टू n+1/4 ऑब्जर्वेशंस, जो भी आता है वो सी एफ आई में देख लो कहाँ पे आता है, सामने एक्स आई में से आंसर। ओके, देन आपको Q3 फाइंड करना, 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, जो भी आंसर आता है वो सी एफ आई में चेक करो, सामने एक्स आई में से आंसर। वंस यू गॉट द वैल्यू फॉर Q3 एंड Q1, यू गॉट टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टोटल डिविएशन दैट इज Q3 minus Q1/2। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ गोल्स इन 16 मैचेस ऑफ हॉकी की टूर्नामेंट इज गिवन, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ गोल्स फॉर इट। आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीन डेविएशन, एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, पहले एफ आई एक्स आई कर लो, आपको मीन मिलेगा। देन आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट डिविएशन दैट इज मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई के हर नंबर से आपको एक्स बार माइनस करना है, जो भी आंसर आता है आपको प्लस में लिखना है, फिर इस कॉलम के हर एक नंबर को आपको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार, वो आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आपको वो अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है, जैसे आपको वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है इन दैट पर्टिकुलर केसेस, उसके बाद आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना है, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। आपको मीन डेविएशन ही पूछा है। नंबर 11, इन यूजुअल नोटेशन सिग्मा डी 25, सिग्मा डी स्क्वायर 272 एन इक्वल टू 100, एज्यूम मीन इक्वल टू ए 4, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो पहले एक्स बार फाइंड कर लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ओके, मल्टीप्लाई बाय सी की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। ए इज़ 4, सिग्मा डी इज़ 25 अपॉन एन इज़ 100, इससे आपको एक्स बार मिल जाएगा। एस की फॉर्मूला सिग्मा डी अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन, तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन मतलब 272/100 दैट इज 2.72 माइनस सिग्मा डी अपॉन एन दैट इज 25/100 दैट इज 0.25 का स्क्वायर, माइनस करो 2.72 में से 0.0625, 0.25 का स्क्वायर करके चेक कर लेना कितना आता है, वो माइनस करो, जो भी आंसर है उसका रूट निकालो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एस। जैसे आपको एस मिलता है आपको सी वी फाइंड करना है, एस अपॉन एक्स बार इंटू 100।
फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करो एंड गेट द आंसर. नंबर 12 कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है. आपको n1 दिया है 50, n2 दिया है 60, x बार 1 दिया है 113, x बार 2 दिया है 120. तो पहले मैं कंबाइंड मीन फाइंड कर लूँगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपन n1 प्लस n2. वो कर लेने के बाद जैसे मुझे x बार c का आंसर मिलता है देन मैं फाइंड करूँगा d1 की फार्मूला है x बार 1 माइनस एक्स बार c. वहीं पे उसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो इजी पड़ेगा मुझे. देन d2 कर लूँगा x बार 2 माइनस एक्स बार c, जो भी आंसर से स्क्वायर वहीं पे कर दूंगा. आपको s1 दिया है 6 तो s1 का स्क्वायर कर दूंगा 36. h2 दिया है 7 h2 का स्क्वायर कर दूंगा दैट इज 49. फिर sc इक्वल टू अंडर रूट n1 ब्रैकेट s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 h2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2 कर दो. यू विल गेट द आंसर फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. वैल्यूज आपको इजीली पुटअप करना यहाँ पे ऑलरेडी आता ही है. Okay, with this I have done explain you about near about 15 sums. I want you all people to solve this particular 15 sums today itself and send me as an homework. If you feel any doubt in any of the sum, you can give me a call between 5 to 6 p.m. and send the homework between 6 to 7 p.m. itself. Okay. In the very next lecture, I'll be dealing with section E. Okay. Thank you all. Till that time, stay home, stay safe, keep learning.